आप लोग सब कितना माला चैंटिंग करते हैं? जो प्रेरणा डूबी है 8 आप 16 ओके आप 6 वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। यानी कि सब लोग after that, he was working in Chennai. So that time when he took up SRM Chennai, the SRM Chennai voice established किया, बहुत उसको develop किया. उसके बाद then eventually shifted to Kanpur. उससे पहले आपको CIT होते हैं हम लोग साथ में. His services has been kept on increasing from the time. He was always involved in youth preaching from day one. He has preached to many youths from KIT Pune, then SRM Chennai, established the voice, grew the voice, developed the voice. Then he came to Kanpur. Kanpur में भी almost जितने voices हैं, सब में इन्होंने किया. HBTI Kanpur, so he has developed that voice. Then KIT voice, then उसके बाद SCSJM voice. Currently he is coordinating many of the colleges youth preaching. He is coordinating. ISKCON Youth Forum, as a ISKCON Youth Forum director for Kanpur, so KNIT Sultanpur, IIT BHU, KNIT Allahabad, HBTI Kanpur, IIT Kanpur, and many voices. IIT Lucknow, IIIT Lucknow, like so 10-15 voices. He is coordinating, he is guiding them in terms of youth preaching, guiding many youths. Also in West, also is assisting with this Abhishek this project in West. In what is the country? New Jersey. New Jersey. There also in West, he is preaching, also is assisting Abhishek. In temple also, many of the major services right from temple management, coordination of festivals, all services. So he is involved. Krishna is blessed with a very wonderful brain and mind, mastermind in management. And we have been doing one of the biggest youth festivals, Expression. And he is the mastermind behind it. So Prabhupada ji gave 50 years, so he wanted to offer something to Sri Prabhupada. So that is the time we planned, and that was a unique festival. Expression, you will put on the YouTube, you will see. So first time Sajan Jindal Steel's owner, he has come. Many big celebrities have come in that festival. So we have held like 5-6 festivals किए हमारे पे. तो उसका पूरा coordination भी करते हैं. उसके बाद ISKCON के भी जितने बड़े meetings होते हैं, सब कानपुर में ही हैं. DDC मीटिंग से लेकर और भी जितने मीटिंग्स होते हैं, तो वो सारा काफ़ी सारा coordination he does it. Also very balanced, regulated person, lives personal life, lot of faith in the holy name, keeps reading about the holy name. So very good balance of internal sadhaka and externally powerful manager and people. So let's welcome him to our Tribal and Voice. Phenomenally chanting leader. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hare Krishna. Last week in India. Next week. My English will also do. Correct me? Okay, mix. So thank you very much, all the devotees, for taking out time and coming. So we discuss on one topic, mean life to meaningful life. So in the Vedic culture, आप लोगों को पता होगा कि भारत में when the Britishers came before this, तो भारत में कितने गुरुकुल थे? किसी को पता है? ब्रिटिशर्स के आने से पहले 5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे. तो जो गुरुकुल शिक्षा था भारत में ये शुरू से ही कल्चर रहा है कि एजुकेशन फ्री होता था.
फूड फ्री रहता था, मेडिसिन फ्री रहता था। तो एज पर स्क्रिप्चर्स कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ये तीनों चीज फ्री होना चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, मेडिसिन फ्री होना चाहिए और फूड फ्री होना चाहिए। तो वैदिक कल्चर में ये सब होता था, गुरुकुल सिस्टम था। तो गुरुकुल में जो छात्र जाते थे तो सबसे पहले उनको आत्मज्ञान सिखाया जाता था, फिर उनको चरित्र ज्ञान सिखाया जाता था, फिर उनको कला ज्ञान सिखाया जाता था। ये तीनों ज्ञानों में जो सबसे इजी है वो है कला ज्ञान। जैसे इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 4 साल। लेकिन अगर आपको सच बोलना सीखना है कितने साल लगेंगे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, कितने साल लगेंगे? बहुत साल लगेंगे। करेक्ट। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव जो हैं उनको द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए भर्ती किया गया था, तो द्रोणाचार्य ने कंडीशन रखा कि मैं एक दिन में एक ही लेसन सिखाऊंगा और जब तक वो लेसन आप सब लोग सीख नहीं लेते हो मैं दूसरा लेसन नहीं सिखाऊंगा। तो सारे पांडव कौरव बोले थे हम तो इंटेलिजेंट हैं, तो हम सीख जाएंगे। तो उन्होंने बोर्ड पे पहला लाइन लिखा कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, आई विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो उन्होंने कौरव को पूछा ये लेसन समझ में आया? सब बोले बहुत आसान है, समझ में आ गया। पांडव को पूछा आपको समझ में आया? बोले बहुत आसान है, समझ में आ गया। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज जो मना कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पांडव कौरव सब हंसने लगे, इतना आसान तो लेसन है, मुझे सच बोलना है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर द्रोणाचार्य बताया कि अभी मैं आगे और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। फिर ऐसा करके अगले दिन वापस आए, वापस युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा करते करते 15 दिन चले गए। तो सारे कौरव पांडव हंसने लगे, बहुत हो गया आपको, 15 दिन हो गए, एक छोटा सा लेसन समझ में नहीं आ रहा है। तो 15 दिन के बाद में युधिष्ठिर महाराज बोले कि आज मुझे लेसन समझ में आ गया और आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जीवन में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। ऐसा करते हैं। तो फिर द्रोणाचार्य पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि अरे इन सबको तो तुरंत समझ में आ गया, आपको इतना समय क्यों लगा? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं उनको कि मैंने सोचा इसका मतलब क्या है सच बोलना, और फिर मैंने प्रैक्टिस किया कि कितना डिफिकल्ट है रोज सच बोलना। तो एक बार एक भक्त क्लास दे रहे थे, वो बता रहे थे कि अगर आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे अपने आप को एक दिन में तो पता चलेगा कि कितनी बार मैं झूठ बोलता हूँ। तो उन्होंने पूरा कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर उन्होंने कमिटमेंट लिया कि अभी मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा तो आप देखोगे चरित्र ज्ञान सीखने में बहुत समय लगता है और उससे भी ज्यादा समय लगता है आत्मज्ञान सीखने में। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम सब ने सुना है, लेकिन फिर भी भूख लगता है तो तड़प जाते हैं, सर्दी लगता है तो बहुत अनईजी होता है। तो आत्मज्ञान उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और आत्मज्ञान जो है वो सारे ज्ञानों का फाउंडेशन है, क्योंकि वो हमारी असली पहचान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब ये फाउंडेशन रहेगा तभी चरित्र ज्ञान पॉसिबल है, वरना चरित्र ज्ञान पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर कैन नॉट बी मॉरलिटी, बिना अध्यात्म के मॉरलिटी पॉसिबल नहीं है। एक पाश्चात्य देश के फिलोसोफर हैं, वो बोलते हैं मॉरलिटी इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लोग मॉरल क्यों रहते हैं? क्योंकि मौका नहीं मिलता है मॉरल होने का। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, पुलिस खड़ा है। अगर मानो सरकार अनाउंस कर दे कि आज हम पुलिस को छुट्टी दे रहे हैं और आर्मी को भी छुट्टी दे रहे हैं, आज जिसको जो करना है कर लीजिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा और जो भी आप आज करोगे उसको पाप नहीं कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक दिन में? एक दिन में इतना पाप हो जाएगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। मैं क्यों सच बोलूं, मैं क्यों सेल्फलेस रहूं, मैं क्यों अच्छे गुण को अपनी जिंदगी में विकसित करूं? तो फाउंडेशन क्या है? क्योंकि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है और ये शरीर सिर्फ इस समय के लिए मिला है और हमारी आगे और जर्नी है। ऐसा तो पहले आत्मज्ञान दिया जाता था, फिर चरित्र ज्ञान दिया जाता था, फिर कला ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि कला ज्ञान सबसे आसान है। आप 2 साल में कोई भी स्किल सीख सकते हो। आजकल लोग जो है 10-10 लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस 20-20 सीख लेते हैं। कई लोग हैं जो इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं, डॉक्टरी का भी काम करते हैं, प्रिस्ट का भी काम करते हैं, प्लम्बिंग का भी काम करते हैं। 4-4 डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स का एक ही व्यक्ति काम करता है।
आपको रात में वो अलग दिखाई देगा, दिन में अलग दिखाई देगा, शाम को अलग दिखाई देगा। ऐसा पाश्चात्य देशों में ऐसे लोग हैं। तो कला बहुत आसान है। तो वैदिक लाइफ में ये सिखाया जाता था, और वैदिक लाइफ में लोगों को ये पता था कि जब हम भगवान को केंद्र बिंदु रखकर जिएंगे तो सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और अगर भगवान केंद्र बिंदु में नहीं है तो सारे अच्छे गुण चले जाएंगे और बुरे गुण आ जाएंगे। तो आप देखोगे, द मोमेंट वी गो अवे फ्रॉम गॉड, देन ग्रीड इंक्रीजेस, सेल्फिशनेस इंक्रीजेस, लस्ट इंक्रीजेस, एंगर इंक्रीजेस। द मोमेंट वी कम क्लोजर टू कृष्णा, गॉड, then all these things they reduce. So that's when the Vedic time you will find people staying together, although they may be poor, but then they are staying together. They are helping each other. They are for each other. Now people may have money, but then they are not staying together. No one can trust each other. क्यों? क्योंकि God is not in the center. So जब God center में नहीं रहते हैं तो लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा selfish हो जाते हैं। उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, उनको सिर्फ अपना भोग दिखाई देता है। तो एक बार दो दोस्त जो हैं वो जंगल में गए थे। तो जंगल में ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे, अचानक कहीं से एक टाइगर आ गया, चीता आ गया। तो उसको देख के दोनों डर गए। तो दोनों के पास में बैग थे। तो एक दोस्त क्या किया, अपना बैग नीचे उतार के अपने शूज चेंज करने लगा, रनिंग शूज पहनने लग गया। तो उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, अरे तू रनिंग शूज पहन रहा है, तेरे को लगता है तू टाइगर से भाग जाएगा? बोला, मेरा कॉम्पिटिशन टाइगर से नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन तुमसे है, क्योंकि टाइगर तो एक को ही खाएगा ना। तो उसको पता चला, अरे कैसा दोस्त है ये। तो भौतिक चेतना में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। मानो आप कॉलेज में पढ़ते हो और आप गए अपने टीचर से मिलने के लिए, और टीचर ने आपको कुछ क्वेश्चंस लीक कर दिए कि अरे देखो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैं तुमको बता रहा हूँ ये 4 सवाल पेपर में आएंगे। अब आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त है, आपकी ब्रांच में ही है और आपके साथ रहता है, उसको बहुत दिक्कत हो रहा है सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में, और बार बार आ रहा है, यार पता नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फिर भी आप उसको नहीं बताओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे पास मौका है अपना प्रतिष्ठा स्थापित करने का, इस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ। ऐसा तो हमारे जितने रिलेशनशिप्स भी हैं, जितनी चीजें भी हैं, वो भी सब सेल्फ ओरिएंटेड है। तो एक बार साइंटिस्टों ने भी रिसर्च किया। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मदर मंकी थी, तो मदर मंकी को पानी में रखा और पानी भरने लग गए, और मदर मंकी के साथ में उसका एक बेबी मंकी भी था। तो जब पानी भरने लग गए, जब पानी एक स्तर तक गया, तो मदर मंकी ने क्या किया, बेबी मंकी को ऊपर उठा लिया। तो साइंटिस्ट को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है। फिर वो पानी भरने लग गए, तो मदर मंकी ने बेबी मंकी को अपने सिर के ऊपर रख लिया। लेकिन जब पानी मदर मंकी के यहाँ तक पहुंचा, तो साइंटिस्ट देख के सरप्राइज हो गए कि मदर मंकी ने बेबी मंकी को नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो वो भी एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे ये कैसा है। तो हम देखते हैं कथा कथित अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता भी है, ऐसा प्रतीत भी होता है, दिखाई भी देता है, उसके पीछे भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। तो हर व्यक्ति इस दुनिया में कैसे रहता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश रहता है, बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड रहता है। तो सेल्फिश लोगों की पहचान क्या है? तो आप देखोगे जो सेल्फिश लोग रहते हैं, सो दे मे हैव नॉलेज बट उनका कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि पीएचडी की क्लास क्यों ना हो, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें भी इन्विजिलेटर को बिठाना पड़ता है कि अगर इन्विजिलेटर को नहीं बिठाएंगे, भले पीएचडी के छात्र हैं, क्या करेंगे वो लोग? चीटिंग करेंगे। तो आप बताइए, इतने प्रतिष्ठित और इतने बड़े पोस्ट धारण करने वाले हैं, लेकिन उनका चरित्र कैसा है? चीटिंग करने वाला चरित्र। रूपा जी बताते थे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी स्मोकिंग करते हैं। उनको पता है और पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे धुआं लंग्स में जाएगा और कैसे लंग्स जो हैं वो काले हो जाएंगे और कैसे आप मर जाओगे। पूरा स्टेज वाइज आपको समझा सकते हैं और उसके बाद उसको स्मोकिंग करेंगे। ऐसा तो पहले गवर्नमेंट ने देखा कि स्मोकिंग के इतने इल इफेक्ट हैं, तो उन्होंने कंपनीज को बोला आपको लिखना पड़ेगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो कंपनी वालों ने सोचा अरे अगर हम ऐसे लिख देंगे, आप सोचिए जिस पैकेट को आप पीने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है ये आपकी सेहत को खराब कर देगा, तो कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। तो कंपनी बड़ा उनको दिक्कत हुआ कैसे होगा। गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये कंपल्सरी आपको लिखना पड़ेगा। तो कंपनियों ने लिखा। फिर कंपनी वाले जो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के पास गए कि सर बताइए प्रोडक्ट सेल कैसे होगा।
हम तो पैकेट पे लिख रहे हैं कि इसको पियोगे तो आप चले जाओगे। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बोलती है आप चिंता मत करो, हम संभालते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के एड्स बनाने चालू कर दिए। जो व्यक्ति है वो जा रहा है ऐसे पी रहा है, तो पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है उसको बोल रहा है नहीं ये सही नहीं है, तो व्यक्ति तुरंत बोलता है ओके। तो सोसाइटी में एक ऐसा इमेज बना दिया कि अगर आपके अंदर गट्स हैं, अगर आप डूड हो, कूल गाय हो, तो आप क्या करोगे? स्मोक करोगे। तो कंपनी ने देखा कि अरे जो सेल है कम होने की जगह बढ़ने लग गए, तो कंपनी बड़ा खुश हो गई कि अरे ये तो बहुत अच्छा। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि अरे अब तो और लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी आप लिखिए स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ऐसा करके लिखिए। तो कंपनी बोले कि ठीक है ऐसा लिख देते हैं, तो ऐसा लिखने लगे। फिर भी उस प्रकार की एड्स के कारण फिर भी लोग पीने लग गए। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि आप लिखिए स्मोकिंग पिल्स, और एक व्यक्ति का फोटो भी लगा दिए जिसके सब फेफड़े वेफड़े दिखा रखे हैं। तो अभी गवर्नमेंट की वजह से कंपनी वैसा लिखती है और फिर भी लोग पीते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलिटरेट लोग पीते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो तो अच्छे अच्छे ब्रांड वाले लोग पीते हैं, राइट। जो पीएचडी होल्डर्स हैं, आईआईटी पास आउट्स हैं, एनआईटी पास आउट्स हैं, और कुछ जो है वो एमएस कर रहे हैं येल यूनिवर्सिटी से, शिकागो से, यूएस से, वो भी स्मोकिंग करते हैं। तो वैदिक कल्चर में देखेंगे कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये इस प्रकार का सिद्धांत रहता है। दूसरा मनी विदाउट एथिक्स। तो आप कलियुग में देखोगे पीपल दे डोंट माइंड हाउ मनी कम्स बट मनी शुड कम। लॉस एंजलिस में एक हॉस्पिटल था, तो उसमें नर्सेस क्या करती थी, जो पेशेंट आते थे तो उनके ऊपर गैम्बल करती थी। तो पेशेंट आते थे तो नर्स गैम्बल करती थी कि ये ना 4 दिन के बाद मरेगा, और दूसरी नर्स बोलती थी नहीं ये 6 दिन के बाद मरेगा। तो अगर वो नर्स देखती थी कि अरे मैं लूज कर रही हूँ गेम, तो रात में क्या करती थी, उसके तार वार हिला देती थी, उसका ऑक्सीजन वगैरह बंद कर देती थी, जिससे कि वो जल्दी से मर जाए। तो उस हॉस्पिटल में देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट जल्दी से जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर्स तो पूरा अच्छी तरीके से इलाज कर रहे हैं, और बहुत फेमस हॉस्पिटल भी था अमेरिका का, तो और फेमस हो गया इसकी वजह से। तो फिर फाइनली उन्होंने पता किया कि 2 नर्स हैं वो गैम्बल करती हैं, और कभी ये ऑक्सीजन ढीला कर देती है, कभी वो ऑक्सीजन टाइट कर देती है, इसकी वजह से पेशेंट जो है वो जा रहे हैं ऐसा। तो मनी विदाउट एथिक्स। अगर कोई कॉर्पोरेट वाला व्यक्ति आता है किसी गांव में और बोलता है अगर आप इस खेत में तंबाकू उगाओगे, टोबैको उगाओगे, तो आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज फॉर ग्रोइंग टोबैको, तो क्या करेगा? 10 लाख रुपीज लेके टोबैको उगाएगा, क्योंकि मनी हैज बिकम सेंटर, राइट। तीसरा है प्लेजर विदाउट पर्पस, या प्लेजर बिफोर पर्पस। तो कलियुग में आप देखेंगे लोग इतना सेल्फिश हो गए हैं कि पर्पस क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? भोग चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, ऐसा। जैसे आप देखिए खाने के इतने प्रकार के आइटम्स हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो खाने से पहले सोचते हैं कि क्या ये खाना मेरी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। वो सिर्फ खा लेते हैं, और हो सकता है बाद में उनका जो हेल्थ है वो और गड़बड़ हो जाए। सो प्लेजर बिफोर पर्पस, ऐसा करते हैं। जैसे ही चाइना में एक गरीब परिवार का लड़का था, तो उसके पास में ज़्यादा मनी नहीं था, तो पेरेंट्स के पास गया, तो पेरेंट्स बोले वी कांट अफोर्ड, वी डोंट हैव मच मनी। तो वो क्या चाहता था? आईफोन खरीदना चाहता था। तो हॉस्पिटल में गया, उसने अपना किडनी सेल कर दिया, किस लिए? एक आईफोन खरीदने के लिए। अब सोचिए अभी कल को कुछ समय के बाद में नया ब्रांड आएगा तो दूसरा किडनी भी बेचारे को करना पड़ेगा सेल। तो प्लेजर बिफोर पर्पस। मानो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड यू कम अक्रॉस वन पर्सन, और आप उससे पूछते हो सर आप कहाँ से आ रहे हो, तो मेरे को नहीं पता। और आप उससे पूछो सर कहाँ जा रहे हो, तो मेरे को नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? हाँ, पागल कहेंगे ना। हाँ, लेकिन क्या है, हम लोग भी ऐसा नहीं सोचते। आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कहाँ से आ रहा हूँ? और कितने लोग सोचते हैं कि मेरा आगे वाला जन्म कैसा होगा? कोई नहीं सोचता। लोगों का सिद्धांत क्या है कलियुग में? बस अभी भोग करो और बाद में पता नहीं क्या होगा। हाँ? लेकिन अगर कोई असली में बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो क्या सोचेगा कि मैं इस जन्म में इस प्रकार से क्यों आया, इस जन्म में मेरे को इस प्रकार के दुख क्यों हो रहे हैं,
और आगे वाला जन्म मेरा आगे कैसे होगा, ऐसा। तो एक भक्त ने बहुत अच्छा वीडियो भेजा था, मैं इनको भेजता हूँ, ये प्ले करेंगे आपको। तो हम लोगों का, हाँ आ गया आपको, यू कैन प्ले दिस। तो बहुत अच्छा वीडियो है, एक डिवोटी ने बनाया है। तो अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हम भी ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। मिला है ये जो गलियों में जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दूध काटता है, कोई पट काटता है, घर में बहुत रोला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग, भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज्यादा है समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें। परिवार सहित भगवान मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और अगर मनुष्य जीवन में वो भगवान का भक्त नहीं बनता है तो क्या होता है, भगवान मनुष्य जन्म वापस ले लेते हैं। और कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर जानवर योनि मिल जाता है तो समय ही समय है और आप कुछ कर नहीं सकते चाह कर भी। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई पक्षी है जो पिंजरे में बंद है तो उसको मनुष्य योनि से तुलना किया गया है, और अगर उस पिंजरे का दरवाजा खुला है तो उसको मनुष्य योनि से तुलना किया गया है, और पिंजरे का दरवाजा बंद है तो उसको जानवर योनि से तुलना किया गया है। तो क्या फर्क है जानवर योनि और मनुष्य योनि में? अगर मनुष्य चाहता है तो पिंजरे से बाहर आ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिंजरे का दरवाजा खुला है फिर भी मनुष्य जो है अंदर भोग करने में व्यस्त है। ऐसा तो इसलिए बताया जाता है कि प्लेजर बिफोर पर्पस। जो लोग हैं वो भोग के बारे में तो सोचते हैं लेकिन उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। फिर है प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलियुग में जो लोग हैं वो एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि हाल ही में 2011 में भारत सरकार ने लिव इन रिलेशन जो है वो घोषित कर दिया था कि आप बिना शादी के रह सकते हो, ऐसा। तो आप सोचिए इसका मतलब क्या है कि वो एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई संबंध ऐसे करते हैं और वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं तो बहुत ज़्यादा हमको उसका पाप लगता है। लेकिन आजकल ऐसा धारणा है कि हम बस ऐसे जिएंगे रहेंगे, ऐसा। एक बार एक स्टूडेंट एक डिवोटी से पूछ रहा था कि प्रभु जी ये लिव इन रिलेशन होता क्या है?
डिवोटी उनको बोले बिन फेरे हम तेरे बोले बिना फेरे के एक दूसरे के लोग बन जाते हैं तो होता है। आपको पता है शास्त्रों में भी लिव इन रिलेशन है, लेकिन कौन लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे? सिर्फ जो राक्षस होते थे। ऐसी घटनाएं आती हैं जो बिना शादी के दंपति साथ में रहते थे, लेकिन ये वही रहते थे जो बहुत क्रूर राक्षस हैं, जो खून पीते हैं, जानवरों को खाते हैं, जंगलों में रहते हैं, इस प्रकार के लोग रहते थे। कभी भी कोई भी सभ्य व्यक्ति बिना शादी के औरत के साथ संपर्क करता हुआ वैदिक शास्त्रों में नहीं पाया जाता। लेकिन आजकल लोग जो हैं इस प्रकार से करते हैं। एक ब्राजील में एक मॉडल है, तो मॉडल ने 17 शादियाँ किया। 17 शादी करने के बाद भी उसको कहीं पर भी आनंद महसूस नहीं हुआ, और 17 शादी किया, 17 बार डाइवोर्स किया। तो एक तो है पहले लड़के लड़की शादी करते थे, फिर बीच में होमो मैरिजेस चालू हो गई, जिसमें लड़का लड़की से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करता है। फिर उसके बाद में सोलो मैरिज चालू हो गई, जिसमें व्यक्ति स्वयं से शादी करता है। तो ब्राजील की मॉडल ने क्या किया, 17 बार तो बेचारी का डाइवोर्स हुआ, तो 18वीं बार इसने खुद अपने से शादी की। उसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, लोग भी आए, और उसने खुद अपने से शादी की। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो इसको बहुत पसंद आ गया। तो फिर इसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें पहले खुद को डाइवोर्स दिया फिर 19वीं बार इस लड़के के साथ में विवाह किया। ऐसा तो हम देखते हैं कि जब प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग करते हैं तो क्या होता है, उससे उनका प्योरिफिकेशन नहीं होता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अगर आपको एंजॉय करना है देन यू पे द प्राइस। उससे क्या होगा, जब आप प्राइस पे करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, आपका प्योरिफिकेशन होगा, आपको पता चलेगा कि कहीं पर भी प्लेजर है नहीं, और कितना ज़्यादा उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और कितना उसमें आप फंस जाते हो, कितना उसमें इंटेंगलमेंट रहता है। ऐसा लेकिन आजकल क्योंकि प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग करते हैं तो वो सिर्फ पाप में फंस जाते हैं और उनका प्योरिफिकेशन नहीं होता है। फिर रिलेशनशिप विदाउट लव। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग प्रेम की बात करते हैं, लोग रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन असली में उसमें प्रेम नहीं होता है। ऐसा तो लस्ट की पहचान क्या है? लस्ट में जो व्यक्ति है खुद अपने भोग के बारे में सोचता है, लेकिन प्रेम में जो व्यक्ति है वो दूसरे के आनंद के बारे में सोचता है, दूसरे के खुशी के बारे में सोचता है। ऐसा लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने भोग के बारे में सोचता है। तो लस्ट जो है उसमें आप देखोगे आई सेंटर्ड होता है, लेकिन जो लव है उसमें जिसको हम प्रेम करते हैं वो सेंटर में होता है। तो लव की 4 पहचान होती है। पहला है जो लव है वो पर्सनल है। जैसे आप देखोगे जो वेदवती जो हैं वो भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, और फिर रावण जो है वो वेदवती की सुंदरता को देख के बहुत प्रभावित हो जाता है और वो उनके केस को टच करता है। तुरंत वेदवती जो है तपोबल से अपने केस को काट देती हैं और अपना शरीर जला देती हैं कि ये शरीर अभी रावण ने टच किया है, ये शरीर भगवान राम को अर्पण करने के योग्य नहीं बचा है। मैं अगला जन्म दोबारा लूंगी और फिर भगवान राम को पाने के लिए तपस्या करूंगी। तो ये प्रेम है। प्रेम बहुत व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। लेकिन काम कैसा होता है? काम इम्पर्सनल होता है। तो आप देखोगे कि जो शूर्पणखा है वो पहले राम जी के पास जाती है, बोलती है हे राम तुम तो इतने सुंदर हो और मैं भी इतनी सुंदरी हूँ, तो हम दोनों साथ में विवाह कर सकते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं लेकिन देखो मेरी पत्नी तो मेरे साथ आई है, लक्ष्मण को देखो ये भी तो सुंदर है और ये इसकी पत्नी भी नहीं आई है। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ देखती है, बोलती है हाँ ये भी चलेगा तो फिर लक्ष्मण की तरफ भाग जाती है। तो ये क्या है? ये प्रेम नहीं, ये क्या है? काम है। कई बार आप देखोगे कोई पति है, पत्नी चली गई है तो बहुत रोता है, कई बार भागता है आग की तरफ कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और 1 हफ्ते के बाद दूसरी शादी कर लेता है। तो ये क्या है? काम है। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को वो छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये भागवतम में आता है कि एक बार जो गोपीज हैं तो कृष्ण को ढूंढ रही होती है, कृष्ण चले जाते हैं, तो बीच में नारायण आते हैं, भगवान उनको परीक्षा करने के लिए नारायण के रूप में आ जाते हैं। तो गोपियां नारायण को नमन करती हैं और बोलती हैं हे नारायण कृष्ण कहाँ है? तो भले नारायण क्यों ना आ जाए, लेकिन गोपियां उनके प्रति आकर्षित नहीं हो रही है, वो क्या पूछ रही है? कृष्ण कहाँ है? ऐसा। तो फिर वो कृष्ण की तरफ चले जाते हैं। एक और लीला आती है चैतन्य चरितामृत में, मुरारी गुप्त करके एक भक्त हैं जो राम जी के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बोलते हैं
कि अरे तुम कृष्ण का नाम लो, तो पूरी रात कोशिश करते हैं लेकिन ले नहीं पाते। तो फिर बोलते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु मैं राम को नहीं छोड़ सकता। तो फिर महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं कि कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ता है, और कैसे स्वामी है जो सेवक को नहीं छोड़ता है। तो ये प्रेम की परिभाषा है। ऐसा है, प्रेम में जो व्यक्ति है वो उसी व्यक्ति से प्रेम करता है, वो पर्सनल है, वो व्यक्तिगत है। लेकिन लस्ट क्या होता है, वो इम्पर्सनल है, उसमें व्यक्ति सिर्फ अपने भोग को करना चाहता है। दूसरा है जो प्रेम है, उसमें जो व्यक्ति है वो दूसरे के खुशी के बारे में सोचता है, दूसरे का हमेशा ध्यान में लीन रहता है। ऐसा है, तो आप देखोगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। और क्या सोचते हैं, कैसे मैं उनको प्रसन्न करूं। ऐसा है, और काम में वो क्या सोचता है, मैं कैसे उनको भोग करूं, मैं कैसे उनका शोषण करूं। ऐसा। तीसरा है कि जो प्रेम है वो सेल्फलेस रहता है। ऐसा, सेल्फलेस मतलब कि उसमें व्यक्ति कुछ भी कोई अपनी अपेक्षा नहीं रखता है। तो प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान आते हैं तो भगवान प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप कुछ मांगिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई वानिक नहीं हूँ, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ कि मैं भक्ति करूँगा और आपसे कुछ मांगूंगा। मैं तो सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा, तो प्रेम जो है वो ऐसे सेल्फलेस रहता है, कभी भी कोई कुछ उससे मांगते नहीं है। ऐसा, तो आप देखोगे शास्त्रों में जितने भी उदाहरण हैं उसमें जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान से कभी भी कुछ मांगता नहीं, उससे भगवान को क्या करना चाहता है, देना चाहता है। जब भगवान विदुरानी के पास आए तो विदुरानी नहीं बोल रहे भगवान को, भगवान देखो इतना छोटा सा घर है, ऊपर से पानी आता है, थोड़ा सा कुछ करा दो, नहीं। जैसे भगवान आए उनको केले देने लग गई। सबरी के पास भगवान आए तो सबरी नहीं पूछ रही भगवान मैं इतने समय से इंतजार कर रही हूँ, अब तो वैकुंठ विमान को बुला दो जैसे कि मैं भगवान के धाम चली जाऊँ, नहीं। जैसे भगवान आए उनको बेर खिला दी। ऐसा, तो प्रेम की परिभाषा क्या है, अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं, सिर्फ अपने प्रेमी को देने का भाव रहता है। और चौथा है सैक्रिफाइस। जो प्रेम होता है उसमें व्यक्ति खुद कितना भी दुख झेलने के लिए तैयार हो जाता है अपने बिलीवर्ड को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए। तो एक हमारे सन्यासी हैं राधा गोविंद स्वामी महाराज, वो बोल रहे थे प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता है। प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता है, और काम सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ऐसा, तो प्रेम में जो व्यक्ति है वो खुद कितना भी दुख भोगने के लिए तैयार है। तो एक बार नारद मुनि जाते हैं कृष्ण भगवान के पास, तो उनको हेडेक हो जाता है। तो नारद मुनि बड़ा विचलित हो जाते हैं, तो पूछते हैं भगवान इसका कैसे निवारण होगा। तो भगवान बोलते हैं आप जाइए और ऐसे भक्त की रज लेके आइए जो मेरे शुद्ध भक्त हैं। तो नारद मुनि नीचे जाते हैं हिमालय में, जो बहुत तपस्या कर रहे हैं, और बोलते हैं आप कृष्ण के भक्त हो। बोले हाँ कृष्ण का भक्त हूँ, आपको देखो नहीं कंठी माला है, तिलक है, धोती कुर्ता है, सब कुछ है। बोले अच्छा। तो बोले वो कृष्ण भगवान को सिर दर्द हो रहा है। तो कुछ लोग तो माने ही नहीं, बोले क्या बात कर रहे हो, वो तो सत्यम परम धीमहि, वो तो स्वराट है, वो तो ये है, वो तो वो है, उनको दर्द कैसे हो सकता है। तो आदमी बोले भैया मैं कृष्ण लोक से आ रहा हूँ, दर्द हो रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सबके दर्दों का निवारण करते हैं, उनका नाम तो हरि है, सर्व अमंगल हरि है। तो नारद मुनि बोले छोड़ो। फिर आगे जाते हैं तो और साधुओं से मिलते हैं जो तपस्या कर रहे हैं और कैसे भी करके भगवान को याद करने का कोशिश कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आप कृष्ण के भक्त हो। बोले हाँ पूरा कृष्ण के भक्त हो। तो बोले तो कृष्ण भगवान है, हमको सिर दर्द हो रहा है। तो तुरंत उनके दिल में दुख होता है, अरे भगवान को सिर दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं अगर आप अपने चरणों की रज दे दो तो उससे भगवान का सिर दर्द चला जाएगा। बोले अरे क्या बात कर रहा है, इतना तपस्या कर करके तो पिछले कितने सारे जन्मों का मैंने पाप साफ किया है, अगर मैं अपने चरणों की रज दूंगा जैसे ही आप भगवान को लगाओगे तो मैं तो नरक में चला जाऊंगा, मैं नहीं दे सकता चरणों का रज। तो आप देखिए वो भी देने के लिए तैयार नहीं। फिर नारद मुनि गोपियों के पास आते हैं वृंदावन में, तो गोपियों को बोलते हैं ऐसे सिर दर्द हो रहा है कृष्ण का। तो गोपियां तुरंत विचलित हो जाती हैं, बोले क्या कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो बोले आपके चरणों की रज। तो गोपियां जो हैं पास वाले सरोवर में जाती हैं, पानी से अपने पैर गीले करती हैं, फिर नीचे आती हैं, जमीन में बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा करके बहुत सारा उसका इट्टा बना के बोलती नारद मुनि को ले जाओ। तो नारद मुनि बोलते तुमको पता है ये जैसे ही कृष्ण को लगाऊंगा आप लोग नरक में जाओगे। तो गोपियां बोलती हैं अगर एक क्षण के लिए भी भगवान का सिर दर्द कम होता है इसको लगाने से तो हम हमेशा के लिए नरक में सफर करने के लिए तैयार हैं।
तो ये है प्रेम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रेम को समझना ही बहुत मुश्किल है, करना तो दूर की बात है ना। लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं वो प्रेम नहीं करते हैं, वो क्या है, काम। ऐसा तो काम में क्या है, वो एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, उनको कुछ भी आनंद नहीं मिलता है। तो शास्त्र क्या बताता है कि जीव जिस प्रकार से बना है, अगर वो स्वयं भोग करने की कोशिश करेगा तो उसको उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो भगवान की इमेज है। जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देख रहे हो और मिरर को डेकोरेट कर रहे हो, तो आप रिफ्लेक्शन हो मिरर में, आपके ऊपर डेकोरेशन रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे मैं सुंदर क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैंने अभी भी क्रीम लगाया है, मैंने अभी भी कुमकुम लगाया है। आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपको खुद सुंदर होना है तो रियल व्यक्ति को डेकोरेट करना पड़ेगा, और रियल व्यक्ति कौन है, भगवान है। लेकिन जब हम सेल्फिश रहते हैं तो हम खुद अपने भोग के बारे में सोचते हैं, खुद अपने बारे में सोचते हैं, और जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, जितना भोग करने का कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा तो गीता में भगवान बताते हैं, यही संस्पर्शा भोगा दुख येनेव एवते। तो भगवान गीता में क्या बताते हैं, जैसे ही आप किसी विषय वस्तु को छुओगे, यही संस्पर्शा, जैसे आपने छुआ, किस लिए छू रहे हो, भोगा, भोग करने के लिए, तो क्या मिलेगा, भगवान बोल रहे हैं दुख येनेव एवते। आप एक योनि में दुख नामक बच्चे को प्रेग्नेंट कर दोगे, और कुछ समय के बाद में वो बच्चा बड़ा होकर आपके पास आएगा, बोलेगा पापा आपको याद है 5 साल पहले आपने वो भोग किया था, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आया हूँ किडनी फिल करने के लिए। फिर दूसरा बेटा आएगा, पापा 10 साल पहले आपको याद है आपने वो भोग किया था, मैं दूसरा बेटा हूँ लिवर। फिर तीसरा बेटा आएगा, पापा मैं यहाँ दूध को लेके आया हूँ, अभी आपका समय ही खत्म हो गया, मैं क्या दुख दूंगा, नर्क में मिलेंगे, ठीक है। तो आप बताइए ऐसा क्यों बताया गया गीता में, यही संस्पर्शा भोगा दुख येनेव एवते। इसको कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी विषय वस्तु का आपने छुआ तो आप जो है प्रकृति के गर्भ में एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं जिसका नाम है दुख। ऐसा कैसे समझ सकते हैं, कौन बताएगा? आपको आया सवाल समझ में? जैसे आपने गुलाब जामुन खाया तो छुआ और भोग करने के लिए खाया, अब इसका मतलब क्या है कि आपको दुख मिलेगा उसके लिए, लेकिन आपको तो आनंद मिल रहा है जब गुलाब जामुन खा रहे हो। तो ऐसा शास्त्र में क्यों लिखा गया? हाँ, प्रेरणा बॉयज बता सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब गुलाब जामुन जब खा रहे हैं तो उसके प्रति मतलब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, और उसको जब प्रसाद नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उसको सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, अपने भक्षण के लिए उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो है कि हम उस कर्म बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। मनसा वाचा कर्म जो होता है, कर्म बंधन में फंस गए और हमने बुरे कर्म का बीजारोपण कर दिया, जिसका फल हमें भविष्य। लेकिन बुरा कर्म क्या किया? गुलाब जामुन नहीं तो खाया, उसको भोग की दृष्टि से खाया। जैसे एक मान लीजिए कोई अगर डॉक्टर है, किसी का चीरता है उसको बचाने के लिए, और एक चोर है वो उसको चीरता है उसको मारने के लिए, तो दोनों ने चीरा मारा। हो सकता है डॉक्टर के चीरा मारने से वो पेशेंट मर जाए, हो सकता है चोर के चीरा मारने से वो बच जाए, मरे ना, लेकिन दोनों में चीरा मारा उनके इंटेंशन में फर्क है। तो हम जब उसका भक्षण कर रहे हैं तो प्रभु का प्रसाद समझ करके नहीं भक्षण कर रहे हैं, अपने भोग के लिए भक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनसे पाप। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है। कोई और कुछ बताएगा? प्रेरणा बॉयज में से आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो आनंद लगता है या दुख लगता है आपको? आनंद लगता है। तो इस भगवान तो बोल रहे हैं दुख आएगा, गीता में भगवान गलत बोल दिए। तो इन्होंने जो बताया काफी अच्छा बताया। देखिए क्या है, इस संसार में जितनी भी संपत्ति है सब किसकी है? भगवान की है। देखिए मनुष्य ने कुछ भी रचना नहीं किया है। एक जगह आप जाओगे वहां सिर्फ मार्बल निकलता है, करेक्ट, मकराना वगैरह में जाओगे, लेकिन कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अगर आप अरब नेशंस में जाओगे तो सिर्फ ऑयल निकलता है, कहीं पर जाओगे लिथियम निकल रहा है, कहीं जाओगे गैस निकल रहा है, कहीं जाओगे कोल निकल रहा है। हर चीज कौन देता है? भगवान देता है। तो अगर आप भगवान की संपत्ति को बिना भगवान से पूछे अपने भोग के लिए लेते हो तो हमको क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपका लैपटॉप ले लिया बिना आपसे पूछे,
तो अभी आपके पास में राइट है FIR कराने का और पुलिस के पास में राइट है मेरे को दंड देने का, करेक्ट? वैसे ही अगर हम भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए लेते हैं बिना भगवान से पूछे तो पाप कर्म चढ़ जाता है। भगवान गीता में बताते हैं जो बिना भोग के प्रसाद खाते हैं वो पाप कर्म खा रहे हैं। तो क्योंकि पाप चढ़ गया तो जो पाप है वो दुख के रूप में हमारी जिंदगी में वापस आता है। इसलिए भगवान बताते हैं यही संस्पर्धा भोगा दुख एनेव एवते। किसी भी विषय वस्तु को अगर आप भोग की चाह से स्पर्श करेंगे तो वो आगे चल के आपको क्या देगा? सिर्फ दुख देगा। तो इस दुनिया में दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। अगर किसी वस्तु को आपने अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर दिया बिना भगवान को दिए तो उसको कहा जाता है पाप कर्म। उसी वस्तु को दूसरे जीवों की मदद के लिए आपने उनको दे दिया उसको कहा जाता है पुण्य कर्म। तो इस दुनिया में आप खुद आनंद नहीं उठा सकते, या तो सिर्फ विषय वस्तु को दूसरों को दे दो तो पुण्य हो गया, खुद भोग करने का कोशिश किया तो पाप हो गया। ऐसा तो अगर कोई जिंदगी में बहुत सेल्फिश रहता है और एंजॉय करने की कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी में क्या होगा? वो सिर्फ क्या करेगा? पाप कर्म को एकत्रित करेगा और उसके दुख इस दुनिया में भी मिलेंगे, इस जन्म में भी मिलेंगे और आगे चल के आगे वाले जन्म में भी मिलेंगे। ऐसा तो आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं उनके कभी भी रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इसकी वजह से हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहेंगे, वो हमेशा से सोच रहे हैं मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन इमेज कॉन्शियस जो लोग हैं वो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। तो एक बार एक औरत थी तो वो जा रही थी, तो जब वो जा रही थी तो देखी हर व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा है। तो उसको लगा मैं इतनी सुंदर क्यों, क्या है मेरे अंदर, सब मेरे को देख रहे हैं, क्या है, ऐसा करके उसको भाव आ रहा था। तो ऐसा पूरा जब गई तो सब उसी को देख रहे थे। फिर वो रूम में आ जाती है, दरवाजा बंद करती है, बेड पे बैठती है, बोलती है मैं इतनी सुंदर क्यों, क्या है मेरे अंदर, मेरे को इतना सुंदर क्यों बनाया, इस प्रकार से सोच रही होती है। तो फिर वो मिरर में देखती है तो उसका बिंदी यहाँ की जगह यहाँ लगा। तो लोग उसको नहीं देख रहे थे, लोग उसका बिंदी जो है गलत बेवकूफ औरत ये समझ के देख रहे थे। जैसे आप जिस दिन नए कपड़े पहनते हो तो आपके मन में क्या भाव आता है? सब किसको देख रहे हैं, लेकिन कोई देख रहा होता है? कोई नहीं देख रहा होता। तो जो सेल्फिश लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस में, इमेज कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि अगर आपको सेल्फिश बनना ही है तो भगवान के भक्त बनो। ऐसा क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त नहीं बनते हो और सेल्फिश बन जाते हो शारीरिक स्तर पे तो क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? सिर्फ दुख ही मिलेगा और अंत में अगले जन्म में क्या मिलेगा? आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त बन जाते हो तो क्या होगा? धीरे धीरे करके जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी आपके नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो हार्ट से चली जाएंगी और फिर आप धीरे धीरे करके सेल्फलेस बन जाओगे। इस दुनिया में भी देखा गया है, जैसे बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है उसका मालिक बन गया और उसने इतने बड़े स्तर पे नंबर 1 एक समय पे रिचेस्ट व्यक्ति भी बन गया था, फिर भी उसके हार्ट को सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। फिर बाद में उसने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोला और जब उसमें वो चैरिटी करने लग गया, दूसरे लोगों की मदद करने लग गया, तब उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगने लगा। तो आप देखोगे भौतिक स्तर पे भी जब कोई व्यक्ति थोड़ा सेल्फलेस हो जाता है तो उसको हृदय में थोड़ा संतुष्टि महसूस होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ सेल्फिश है तो संतुष्टि महसूस नहीं होता है। और हाईएस्ट सेल्फलेसनेस क्या है? जब हम भगवान के अधीन होकर या भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनकर लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, तो ये क्या है? हाईएस्ट सेल्फलेसनेस है। और इसमें जो भक्त है उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा उसको इनर फुलफिलमेंट मिलता है। ऐसा तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि अगर आपको सेल्फिश बनना ही है तो क्या बन जाओ? भगवान के भक्त बनो, क्योंकि उसमें हमारा असली स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? तो भगवान का भक्त इतना बुद्धिमान है कि जो हमारा शरीर है जो वैसे ही क्षणभंगुर है, शरीर अविद्या जाल है, पूरा दुखों का सागर है, इस शरीर से वो इटर्नल शरीर को ले लेता है। इस शरीर से भक्ति कर कर, ये शरीर भगवान को देकर भगवान से क्या ले लेता है?
इटरनल शरीर को ले लेता है कि भगवान आप ये ले लीजिए और मेरे को मेरा सच्चित आनंद वाला शरीर दे दीजिए। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ इस दुनिया में? एक तो वो व्यक्ति है जो इस शरीर को गवाकर जानवर योनि में चला जाता है। हो सकता है इस जन्म में वो बहुत बड़ा कोई नेता हो, बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, और अगले जन्म में जानवर बन गया। उसने कितना प्रोग्रेस किया? कोई प्रोग्रेस नहीं किया। एक देश के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी वो प्रधानमंत्री का क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी बताया है कि वो प्रधानमंत्री जो है he has become a dog in स्कॉटलैंड। क्या बन गए वो? स्कॉटलैंड में कुत्ते बन गए। ऑब्वियसली उनके अंदर 3-4 कुत्ते होंगे, नेता बने होंगे वो। लेकिन आप सोचिए जिन्होंने देश चलाया, इतने सारे बड़े स्तर पे नेता थे, और अगले जन्म में क्या बन गए? कुत्ता बन गए। क्या प्रोग्रेस किया उन्होंने? कुछ प्रोग्रेस नहीं किया। दूसरी ओर भक्त है, खटारा गाड़ी देके भगवान को बहुत बढ़िया सच्चिदानंद शरीर जो है उसको पा लेता है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भक्त बड़ा वो है, अच्छा है। भक्त अपने दुख को देखकर भगवान से आनंद की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा है। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना ये बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसे सेल्फलेसली भक्ति करते हैं तो फिर भगवान जो है हमारे को आनंद की अनुभूति कराते हैं। और मनुष्य जीवन बनाई इसलिए है कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों की सेवा कर सकें। एक बार जो चाणक्य हैं वो रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में कुछ कांटे के पेड़ थे, तो चाणक्य उन पेड़ों को निकालने लग जाते हैं। तो उसी समय पे चंद्रगुप्त जो थे वो थे वहाँ पर, वो छोटे बालक थे, तो जा रहे थे। तो उन्होंने चाणक्य से बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हो? तो चाणक्य बोले, मैं ये कांटे के पेड़ हैं इनको निकाल रहा हूँ। तो जो चंद्रगुप्त है वो बोले, अरे अब तो साइड से जा सकते हो ना, क्यों निकाल रहे हो? तो चाणक्य बोले, मैं तो जा सकता हूँ साइड से, लेकिन रात में कोई और आदमी चलेगा, उसको दिखाई नहीं देगा तो उसको लग जाएगा, तो मैं उनके लिए निकाल रहा हूँ। तो फिर चंद्रगुप्त बोले चाणक्य से, आप दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? तो चाणक्य बोले उनको कि ह्यूमन बींग्स जो सेल्फिश होते हैं दे आर लाइक एनिमल्स। तो क्या बताते हैं, मनुष्य लोग जो सेल्फिश हैं वो तो जानवर के समान है। अगर कोई असली में मनुष्य है तो उसे किसके बारे में सोचना चाहिए? दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे वैदिक कल्चर में सेल्फलेसनेस सिखाया जाता था। आप देखो कोई ग्रैंडफादर है, वो आम का पेड़ लगा रहा है, तो किसके लिए लगा रहा है? जब तक पेड़ बड़ा होगा तब तक तो ये चला जाएगा। किसके लिए लगा रहा है? हाँ, अपने पोते के लिए लगा रहा है। तो वैदिक कल्चर में लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में ध्यान रखते थे, और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे। इसलिए हर व्यक्ति खुश रहता था। तो शास्त्रों में बताया गया है कि वैदिक कल्चर में क्या होता था, हर व्यक्ति दूसरे को खुश करना चाहता था, इसलिए हर व्यक्ति क्या रहता था? खुश रहता था। मॉडर्न कल्चर में क्या है, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, कोई दूसरे को खुशी देखना नहीं चाहता है, या कोई दूसरे को खुश करना नहीं चाहता है, इसलिए हर कोई क्या है? दुखी रहता है। No one wants to make anyone else happy. No one wants to make other people happy. And that's why everyone in the Kaliva is unhappy. Vedic culture means everyone wants to make other person happy. That's why everyone is happy. जैसे आप सोचो, आप चाहते हो वो खुश हो, तो आप उनकी ध्यान रख रहे हो, प्रभु आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, तो वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? वो सोच रहे हैं आप खुश हो, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी खुश हो गए। लेकिन आप सोच रहे हो मैं खुश हूँ, तो आप उनसे डिमांड कर रहे हो। वो सोच रहे हैं वो खुश हों, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे? दुखी होंगे। इसलिए कलियुग में हर कोई दुखी है। जो लड़का है उसको लगता है मेरी जिंदगी में दुख है, तो वो लड़की के पास में आता है क्या सोच के, यहाँ से क्या मिलेगा, लेकिन है क्या इसके पास? तो लड़की के पास में दुख है, लड़की सोचती है मैं लड़के के पास जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? सुख। लेकिन इसके पास है क्या? इसके पास भी दुख है, इसके पास भी दुख है। ये सोच रहा है इसके पास में जाके सुख मिलेगा, ये सोच रही है इसके पास में जाके सुख मिलेगा, लेकिन दोनों के पास में क्या है? तो एक दुख जब दूसरे दुख के पास में आएगा तो क्या बन जाएगा? डबल दुख हो जाएगा। तो इसलिए बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि सुख तो है ही नहीं किसी के पास। क्योंकि सुख का मतलब है जब हमारे अंदर इच्छा हो दूसरों को सुख करने की कोशिश करूंगा मैं, वो होता है सुख। ऐसा तो इसलिए हम देखते हैं मॉडर्न कल्चर में कोई खुश नहीं रहता है, वैदिक कल्चर में हर कोई खुश रहता है। ऐसा तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम भगवान को केंद्र बिंदु रखकर ये जो पहलू हैं इनको हम अपनी जिंदगी में विकसित करते हैं या कर सकते हैं। आप अपने जिंदगी में भी देखोगे
आपके परिवार में आप उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा आसक्त हो जाओगे या उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस फील करोगे जो बहुत सेल्फलेस है। और आप देखोगे इन जनरल जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश व्यक्ति है उससे आप दूर रहना चाहोगे, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति से कोई भी पास में नहीं रहना चाहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूरा जो हमारा नेचर है, जो पूरा हमारा क्रिएशन है, वो पूरा सेल्फलेस प्रिंसिपल को ही दर्शाता है। आप देखोगे जो पेड़ हैं फल आते हैं किसको देते हैं? मनुष्य को देते हैं। पेड़ लास्ट मोमेंट तक अगर उस पेड़ को आप काटोगे भी तो किसकी सेवा में लग जाता है? वो मनुष्य की सेवा में लग जाता है। जन्म से लेके, ग्रोथ से लेके, प्रोडक्ट से लेके और उसकी डेथ तक किसकी सेवा करता है? लोगों की सेवा करता है। करेक्ट। वैसे ही गाय है, थोड़ा सा दूध बछड़े को देगी, फिर सारा दूध किसके लिए? उसका जो गोबर है वो भी। तो आप देखो कि पूरा प्रकृति बनाया ऐसे, पृथ्वी है उसमें धान आता है, उसमें ग्रेन्स आता है, किसके लिए? मनुष्य के लिए। रिवर है, इतना दूर हिमालय से चलती हुई बेचारी ओशन तक आती है, लेकिन किनको मदद करती है? इतने सारे जीव जो रिवर में रहते हैं, इतने सारे मनुष्य जो बैंक्स में रहते हैं। तो वैदिक कल्चर ही ऐसा। और आइडियली ये सारी स्पीशीज जो हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पीशी कौन सी है? मनुष्य। तो सबसे ज्यादा सेल्फलेस किसको रहना चाहिए? मनुष्य को रहना चाहिए। और जितना कोई मनुष्य सबसे ज्यादा सेल्फलेस रहेगा उतना ज्यादा वो दूसरों को आकर्षित कर पाएगा, उतना ज्यादा वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। एक बार जो कलिंग देश के राजा थे अशोका द सम्राट, तो उन्होंने ये कलिंग करके बहुत बड़ा वॉर हुआ था कलिंग देश में, और उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा था, काटा था, पीटा था, खून बहाया था, और उनको बहुत गर्व था इस बात का। तो एक पहाड़ पे चढ़ के गए और वो देख रहे थे कि कैसे लाशें पड़ी हुई, तो देखना चाहते थे मैंने कितने लोगों को मारा है, कितनी लाशें हैं। तो ऐसा करके जब वो गए देखने के लिए, उसी समय पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो वहां पर आया था जहाँ लाशें पड़ी थी। जैसे ही उसने देखा किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, गला कटा है, सब दुख में है, पीड़ित हैं। अब उसको पता है कि कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं है, सब मरने वाले हैं। फिर भी वो मॉन्क जो है हर लाश के पास में जा रहा था जब वो लास्ट सांसें ले रहा है, और बोला था मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर पानी पानी तुरंत भाग रहा था, पानी ले रहा था, पानी दे रहा था। अब उसको पता है मर जाएगा ये, फिर भी वो मदद कर रहा है पानी। फिर दूसरे के पास जा रहा था, कैसे मदद कर सकता हूँ, तो उसका बेचारे का हाथ नीचे फंसा हुआ था, तो हाथ चुपचाप निकाल देता है। तीसरे के पास जाता है, करोड़ बदल दो, करोड़ बदल देता है। तो ऐसे वो भाग भाग के मदद कर रहा है, और जबकि उसको पता है सब मरने वाले हैं, फिर भी सबको भाग भाग के मदद कर रहा है। तो जब अशोका ने देखा कि अरे मैंने तो इतना निर्दयता से इन सबको मार दिया, लेकिन ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ये कैसे मदद कर रहा है लोगों की, और जबकि उसको पता है सब मर जाएंगे, फिर भी लास्ट क्षण में भी, लास्ट अंतिम घड़ी में भी कैसे वो कोशिश कर रहा है कि मेरे को कुछ तो आनंद दूं, कुछ तो आनंद दूं, कुछ तो खुशी दूं। ये जो सेल्फलेस एक्ट था उस बुद्धिस्ट मॉन्क का, ये अफेक्ट कर दिया किसको? अशोका को। और उसके बाद में हम जानते हैं अशोका जो है भगवान का इतना बड़ा भक्त बना। ऐसा तो हम देखते हैं कि जब कोई भक्त जो है इस प्रकार से भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और ऐसे बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो जाता है, तो हर जीव को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा है, और इसी में उसको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको बनाया ऐसे, ये मेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान ने हमको बनाया है कि हम भगवान के दास हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो जड़ आनंद है, जड़ आनंद मतलब जो इंद्रियों से लेते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, ये सब क्या है? जड़ आनंद है। ये जड़ आनंद से भी 1000 गुना ज़्यादा है जो है देव आनंद। देव आनंद मतलब स्वर्ग का आनंद है। यही इंद्रियों को भोग करना है, लेकिन स्वर्ग में भोग करना है, जहाँ आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अगर आपको भोग करना है तो मेहनत करना पड़ता है, स्वर्ग में भोग करना है तो मेहनत नहीं करना पड़ता है, और उसका कोई आपको विपरीत फल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ के भोग से यहाँ का भोग 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। इससे भी 1000 गुना ज़्यादा बताया जाता है ब्रह्म आनंद। ब्रह्म आनंद मतलब जब आप लिबरेट हो जाते हो, इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाते हो, उससे भी कई 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है सेवा आनंद। जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हो, जब आप भगवान को केंद्र बिंदु रखकर दूसरे लोगों की सेवा में लग जाते हो। ऐसा तो ये जो है, ये कैसे परिवर्तन होता है भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति, ये कैसे परिवर्तन होता है कि हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस में आ जाएं जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसका एक कहानी आता है चेतन चरितामृत में
कि नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे होते हैं, तो एक हंटर होता है मृगारी नाम का। जैसे ही नारद मुनि जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जानवर जो है उनको आधा मारा गया है और तड़प रहे हैं। तो नारद मुनि हर जानवर के पास जाते हैं और देखते हैं कि बेचारा कितना तड़प रहा है। तो नारद मुनि सोचते हैं किसने इस प्रकार से मारा है। तो नारद मुनि आगे जाते हैं तो हंटर आ जाते हैं। तो नारद मुनि मृगारी को बोलते हैं कि अरे अगर आपको मारना ही है तो इनको पूरा मार दो, ऐसे आधा क्यों मार रहे हो, बेचारे इतना तड़प रहे हैं, इतना दुख उनको लग रहा है। तो मृगारी बोले कि अरे मेरे को तो ऐसा ही सिखाया गया। बोले अरे ये सही नहीं है, आप इतना दुख दे रहे हो उनको और आपको इसका बहुत फल मिलेगा, ये सारा दुख आपके पास में आएगा। तो मृगारी जो है उनके चरणों में पड़ जाता है, नारद मुनि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे तो पता नहीं था। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं आप भगवान का नाम जप कीजिए और धीरे धीरे करके आप ये सारे जो पाप हैं इनसे मुक्त हो जाओगे। तो मृगारी जो है नाम जप करने लग जाता है और कुछ समय के बाद में नारद मुनि जो है उनके एक मित्र होते हैं पर्वत मुनि, और उनको बोलते हैं कि चलो पर्वत मुनि मेरा एक शिष्य है उससे मिलते हैं। तो पर्वत मुनि को लेके आते हैं। अब जैसे ही मृगारी जो है पर्वत मुनि और नारद मुनि को देखता है तो दंडवत करना चाहता था, लेकिन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ चींटियां हैं और वो कुछ झाड़ू लेके आता है और चींटियों को हटाने लग जाता है। तो पर्वत मुनि तुरंत बोलते हैं नारद मुनि को कि नारद मुनि तुम तो चिंतामणि हो, ऐसा क्रूर मृगारी जो जानवरों को आधा काटता था उसको आपने ऐसा बना दिया कि आज चींटियों पे पैर रखने के लिए तैयार नहीं। तो आप देखिए उसके हृदय में परिवर्तन कैसे आ गया, भगवान का भक्ति। और भगवान का भक्ति उसने कैसे किया? भगवान का नाम जप करके। ऐसा तो जब हम भगवान के पास में आते हैं, खास करके भगवान का नाम जप करके कलियुग में, तो क्या होता है हमारा भी हृदय इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति करने के लिए खास करके कलियुग में उस प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं फर्स्ट कैंटो भागवतम में, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द मटेरियल वर्ल्ड इज सरचार्ज विद एन अपोजिशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? हर पार्टिकल कलियुग में आपको बोल रहा है कि भक्ति मत करो, और आप बोल रहे हो मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो क्या है? बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कलियुग में भक्ति हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की कृपा बहुत ज्यादा है। तो एक बार एक भक्त से हम बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि प्रभु जी अभी कलियुग में तो माया बहुत बढ़ गई है और भक्ति करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो हमको बता रहे थे कि आप करीबन 1000 साल पहले के अगर लेक्चर सुनोगे, जो प्रवचन होते थे हमारे आचार्यगण देते थे, या 200-300 साल पहले जो भक्ति श्री ठाकुर के प्रवचन है, तो उनके प्रवचन में भी वो बार बार बोलते थे कि माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत शक्तिशाली है। और आपको लगेगा कि उस समय पे तो क्या माया थी, ना बॉलीवुड था, ना मीडिया थी, ना टीवी था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। आपको लगेगा कि अरे उस समय पे तो माया थी नहीं। तो फिर उन भक्तों ने बोला माया इज ऑलवेज एट हर बेस्ट। मटेरियल एनर्जी जो है वो माया है, वो हमेशा अपनी पूरी ताकत के साथ रहती है, और उस समय कैसा माहौल करना है, कैसे लोगों को भक्ति से दूर रखना है वो जानती है। फिर उन्होंने बताया कि ये जितने भी पहलू हैं इनसे कोई भक्ति में आना या भक्ति ना करना ये निर्भर नहीं करता है। महाप्रभु की कृपा हमेशा है। जो प्रमाणिक है, जिसके अंदर थोड़ा सा इच्छा है मुझे भक्ति करना है, तो महाप्रभु की कृपा के कारण वो आज की एज में भी भक्ति कर पाए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि अगर आपको चिंता करना है तो इस बात की चिंता करो कि महाप्रभु की कृपा कितनी ज्यादा है। और फिर बोलते हैं अगर आप ये चिंता करोगे कि महाप्रभु की कृपा कितनी ज्यादा है तो आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि कलियुग में बिना महाप्रभु की कृपा के भक्ति नहीं कर सकते। आप में से कितनों ने इस्कॉन से जुड़ने से पहले गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा था? कोई है जिसने एक भी श्लोक नहीं पढ़ा था गीता का? सबने पढ़ा था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया था इस्कॉन में आने से पहले? कितने लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि राधा कृष्णा है, इनकी पूजा होती है, या भगवान है उनसे हमारा संबंध होना चाहिए? ऐसा था? तो आप सोचिए ये सब हमको पता ही नहीं था, जबकि हम कहाँ पर हैं? भारत में। हमारे घर में जो आ रहा था तो उसमें गीता और रामचरितमानस ये 2 किताबें हमारी मम्मी ने रखी हुई थी।
शायद हमारे दादा परदादा किसी की तो होंगी वो, और वो लाल कपड़े में ऐसे ऐसे करके पैक करके रखी रहती थी और उसके ऊपर में एक पीला सा धागा रहता था। तो जब हम बचपन से बड़े हुए तो हमारा धारणा यही था कि ये दोनों ग्रंथ हमेशा बंद रहने चाहिए, पूरे कपड़े में अच्छी तरीके से और धागे के साथ। तो साल में एक बार दीपावली के समय सफाई होती थी तो हम आरा साफ करते थे, तो ग्रंथ को लेते थे, हम खोलते थे, जल्दी से साफ करके जल्दी से बंद करके धागा लगा के रख देते थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस प्रकार से ये धारणा था। लेकिन क्योंकि महाप्रभु की कृपा है तो हम उन ग्रंथों को अभी पढ़ रहे हैं, उन ग्रंथों को हम समझ रहे हैं। जैसे आप सब लोग 6 माला 8 माला करते हो, है ना? अगर कोई नया व्यक्ति आप उसको बताओगे कि मैं 8 माला जप करता हूँ 1 घंटा बैठ के, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, 1 घंटा कैसे जप कर सकता है, करेक्ट? लेकिन आप कर पा रहे हो, क्यों? किसकी कृपा है? महाप्रभु की कृपा है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भले हम कलियुग में हैं लेकिन कृपा महाप्रभु की बहुत ज्यादा है। तो अगर हम प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान जो है बहुत ज्यादा हमारे को कृपा करेंगे। ऐसा कई बार जो नए भक्त आते हैं भक्ति में, उनको डर लगता है, अरे अगर मैं ज़्यादा सीरियस भक्ति करूँगा तो मेरे भौतिक दुनिया खत्म हो जाएगी, या मैं बाबा बन जाऊँगा, या मैं मटेरियली फेलियर हो जाऊँगा, मटेरियल हमारे एम्बिशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप भगवान से जुड़ते हो तो आपके सारे पहलू इम्प्रूव होते हैं। आप एक अच्छे सिटीजन बनते हो, अच्छे सन बनते हो, अच्छे हस्बैंड बनते हो, अच्छे फादर बनते हो, अच्छे स्टूडेंट बनते हो, अच्छे वर्कर बनते हो, हर पहलू आपका इम्प्रूव होता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के पास में जाने से हमारा कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस नहीं होता। जो आपको मिलना है मटेरियली वो भी मिलेगा, और जो आपको मिल रहा है उसको आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर पाओगे और भगवान की सेवा में लगा भी पाओगे। ऐसा तो हमको ये विश्वास होना चाहिए। आप देखोगे जो हमारा वैदिक इंडिया था उसमें सब लोग भगवान के भक्त थे और बेस्ट ऑफ पीपल रहते थे भारत में, बेस्ट ऑफ टीचर्स, बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, बेस्ट ऑफ रिसर्च, बेस्ट ऑफ क्षत्रियास, बेस्ट ऑफ ब्राह्मणस, करेक्ट? और जबकि सब क्या थे? भगवान के भक्त थे। तो भगवान का भक्त बनने से कोई फेलियर नहीं बनता है, असली में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है। ऐसा सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यक्ति कौन रहता है? भगवान का भक्त। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है तो उसकी आशा कभी टूटती नहीं। शास्त्र में बताया गया कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उससे कोई धन ले सकता है, उससे उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उसके स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक भक्त की आशा को नहीं ले सकता है। भक्त जो हमेशा आशाबंद रहता है कि भगवान की कृपा जरूर आएगी। तो आप देखो कि जो पांडव लोग थे उनको निकाल के खांडव दे दिया था और दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि हमने तो उनको रेगिस्तान में भेज दिया, दुबई में भेज दिया, सिर्फ रेती रेत है वहां पर, इस प्रकार से। और यहाँ पर जब ये पांडव लोग गए तो भीम भी उनको बहुत टीज कर रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि देखिए युधिष्ठिर महाराज आपको कहाँ भेज दिया? खांडव प्रस्थ में, सिर्फ रेती रेत है, यहाँ पर रेती रेत है। और फिर बोले युधिष्ठिर महाराज रुकिए रुकिए, एक पेड़ है देखिए वहां पर, आपका आसन उसके नीचे बिठाएंगे, आप राजा हो ना तो पेड़ के नीचे आपका आसन लगाएंगे। तो इस प्रकार से वो टीज करता है युधिष्ठिर महाराज को, आइए आइए सब लोग यहाँ पर आसन लगाइए, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं और हम सब लोग यहाँ पर गर्म रेत में बैठेंगे, प्रजा हैं, इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अरे आप क्यों मेरे को टीज कर रहे हो? मेरे को भी उतना ही दुख है जितना आपको दुख है। उसी समय पे कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो पहला सिद्धांत कृष्ण भगवान को क्या बताते हैं कि डोंट लैमेंट ओवर व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ है उस पर शोक मत करो। दूसरा सिद्धांत क्या बताते हैं भगवान? अब इसमें हमें देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो भगवान देखते हैं कि पास में बहुत बड़ा जंगल है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ऐसा करते हैं जंगल को साफ करते हैं और कुछ डेवलप करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान जैसे ही मैं जंगल को आग लगाने की कोशिश करता हूँ इंद्र देवता आते हैं बारिश कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं चलो अभी हम लोग कोशिश करते हैं जलाने का। तो दोनों जलाने का कोशिश करते हैं और इंद्र जो आते हैं वो बारिश कर देते हैं। तो अर्जुन जो है तीरों से पूरे खांडव प्रस्थ को भर देते हैं जिससे कि एक भी बूंद नीचे न गिरे। पूरा जंगल जल जाता है और उसमें माया दानव छुपे होते हैं। माया दानव तुरंत निकल के आते हैं, अपने प्राणों की रिहाई मांगते हैं, कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा करो आप ना इनके लिए बहुत बड़ा सिटी बना दो यहाँ पर। तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम जंगल जलाएंगे फिर माया दानव निकलेंगे और ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने उसको पूरा दुबई की तरह डेवलप कर दिया, ब्रज खलीफा वगैरह ये सब आ गया उधर। उसके बाद में इन्विटेशन लेटर गया दुर्योधन पार्टी को कि उन्होंने
बहुत बड़ा सिटी बनाया है, उसका राज्याभिषेक होगा। तो दुर्योधन लोगों ने सोचा है जंगल में क्या बनाया होगा, उन्होंने रेती रेत है, वहाँ पर छोटे छोटे रूम बनाए होंगे कुटिया टाइप। तो उन्होंने बोल दिया देखो ज़्यादा लोग तो लेके नहीं जाएंगे वहाँ पर, कि वहाँ पर डॉर्मेट्री रहेगा, अटैच बाथरूम भी नहीं मिलेगा, हॉट वाटर भी नहीं मिलेगा, प्रसाद का भी खिचड़ी विचड़ी रहेगा, और तो कुछ उगेगा नहीं वहाँ पर। तो सिर्फ 4-5 लोग ही गए कि हम लोग ही जाके क्या जाना तो पड़ेगा ही, हम थोड़ा सा तपस्या करके सुबह पहुँचेंगे, रात वाली ट्रेन से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकोमोडेशन वगैरह तो बड़ा मुश्किल रहेगा। तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं जहाज में, तो दूर से शकुनी देखता है, क्योंकि पानी का सरोवर क्रॉस करना होता है उनको दुबई जाने के लिए। तो दूर से शकुनी बोलता है अरे ये तो ब्रज खलीफा खड़ा कर दिया वहाँ, इतना बड़ा, एशिया का लॉन्गेस्ट बिल्डिंग। तो दुर्योधन बोलता है क्या बोल रहे हो, तो दूरबीन लगा के देखता है, बोले बाप रे खतरनाक। ऐसा तो आप देखोगे भगवान अपने भक्तों को सिखाते हैं कि कैसे भी आप दुख में सुख खोज सकते हो। इसलिए भगवान का भक्त कभी निराश नहीं होता, भगवान का भक्त कभी भी फेलियर में गिरता नहीं है। वैदिक कल्चर यही है, टू ट्रेन अ पर्सन ऑन हार्ड नॉट्स, टू ट्रेन अ पर्सन ऑन हार्ड ग्राउंड्स। तो वैदिक जो फॉलोअर होता है उसकी जिंदगी में आप कितना भी दुख लेके आओ, वो उस दुख में सुख की बिल्डिंग बना देता है, ये भक्त की पहचान है। ऐसा तो आप देखोगे भगवान राम है जिनको एक क्षण पहले राज्याभिषेक होने वाला था, एक क्षण के बाद में पता चला कि आपको जंगल जाना है, तो तुरंत भगवान के मन में आता है कि इसी दिन के लिए हमारे गुरु ने हमको ट्रेन किया था, क्योंकि उनके गुरु ने हमको ट्रेन किया था जमीन पे कैसे सोना है, उनके गुरु ने ट्रेन किया था कैसे जंगल में रहना है, उनके गुरु ने ट्रेन किया था कैसे कंदमूल खा के जिंदा रहना है। तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि इसी दिन के लिए तो गुरु ने ट्रेन किया था, आज उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करने का दिन आ चुका है। ऐसा लेकिन आजकल देखो मॉडर्न कल्चर, माता पिता हैं बचपन से इतनी फैसिलिटीज दे देते हैं बच्चे को, और एक फेलियर आता है बच्चे की जिंदगी में, सुसाइड, क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं दुख को अपनी जिंदगी में। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा नहीं है। आप देखोगे शास्त्रों में इतने उदाहरण हैं कि एक के बाद एक नाना प्रकार के भगवान के भक्तों में दुख आए, लेकिन फिर भी उस दुख से विचलित नहीं हुए और कैसे आगे चल के अच्छी तरीके से आगे बढ़े वो। ऐसा तो भगवान का कोई भक्त बन जाता है तो हर पहलू से वो ऊपर उठ जाता है। ऐसा तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इस टाइम पे आए हैं जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है और इतना आसान प्रोसेस कर दी है। आप देखिए पहले ज़माने में अगर आपको भक्ति करना है तो घर परिवार सब छोड़ के, कॉलेज भी छोड़ के, नौकरी भी छोड़ के हिमालय में जाना पड़ेगा। हिमालय में जाके वहाँ पर पर्वत में चढ़ो, ठंडे पानी में नहाओ, फिर पूरा दिन रात तपस्या करो और कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं। कर पाओगे आप लोग? कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आप सोचिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समय था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे अगर किसी को भगवान का भक्त बनना है तो रोज 64 माला करना। कितना? 64 माला। तो अगर सोचिए आपका जन्म उस समय पे होता और आपको भक्त बनना है और आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं, उनके शिष्यों के पास जाते, तो क्या बोलते कितना माला जप करना है? तो आप में से कितने लोग आते कोई है कि बच पाता? नहीं बच पाता है ना। प्रेरणा भी गायब हो जाता और इन्वेस्ट भी गायब हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की और कृपा आई प्रभुपाद जी के माध्यम से, और कितना माला आ गया? 16। तो आप सोचिए ये बेसिक मिनिमम है। प्रभुपाद जी ने स्पिरिचुअल लाइफ को स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेसिक मिनिमम और एक्सेसिबल बना दिए और रिजल्ट सेम दे रहे। तो ऐसा मौका जिंदगी में किसी भी जीव को कभी नहीं मिलेगा कि 16 माला करके, 4 नियम पालन करके, भक्तों के संग में रह के, अच्छा प्रसाद खा के, भक्ति करके भगवान के धाम चला गए। ऐसा ये सिर्फ इसी बार मिला है। और अगर इस बार भी हम अपने जीवन को धन्य नहीं करते हैं, ये मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, तो आगे चलकर बहुत मुश्किल है। जब माया देवी को हरिदास ठाकुर लिबरेट करते हैं तो माया देवी बड़ा खुश हो जाती है और माया देवी बोलती है हरिदास ठाकुर को कि अरे हरिदास इतना कृपा है महाप्रभु का। और फिर बोलते हैं अगर कोई इस समय पर भी भगवान का भक्त नहीं बनता है तो आने वाले 1000 कल्प में भी नहीं बन पाएगा। ऐसा माया देवी हरिदास ठाकुर को बोलती है कि अगर आप अभी भक्ति नहीं कर सकते हो तो आने वाले 1000 कल्प में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा सुगम मौका, ऐसा सुलभ मौका आपको कभी मिलेगा। ऐसा तो हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए। आपका सेंटर इतना पास में है, आलिशान प्रभु हैं, आकाश प्रभु हैं और भक्त हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं। तो भक्तों का संग मिलना, भगवान का गुणगान होना, भगवान का पूजा होना और खुद मौका मिलना भगवान का गुणगान सुनने का, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। ऐसा
तो अगर आप इसका फायदा उठाएंगे और सहभाग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम विराम देते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।